फाइनली आप सभी का वेट ख़त्म होता है, ओजैंग सर आ गए हैं, तो प्लीज़ स्टैंड फॉर वेलकमिंग हिम एंड गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द all judges, for all sirs and for all our rank holders. Please give a big round of applause. Ladies and gentlemen, needless to say anything about this academy, Ojang IAS. As we all know, this academy has been offering its best of teaching as best academy indeed. It is said that if we get right direction at initial stage, our journey becomes smoother. And Ojang is an institute who believes not only a student should be dedicated and focused, but also teachers and mentors should be dedicated and focused equally. As we all know, for making a beautiful building, the all ingredients should be important and equal. Apart from this, the 8R methodology of Ojang, making it different from others. And these are the right counseling, right guidance, right resources, right fee, right motivation, right approach, right mentor, and of course, result. And today, this evening, ladies and gentlemen, standing in this hall, I would privileged and honored to say that I feel very privileged to associate with this renowned and a very prestigious IAS institute. So I can understand how you all are feeling today. Ladies and gentlemen, why not to give a big round of applause? Please, तालियां बजाएं. This is really wonderful to see a wonderful people sitting here. तो आइए इस अहम से शुरुआत करने के पहले लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस खूबसूरत सी शाम में मैं हूं आपकी होस्ट रितु सिंह और आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करती हूं और शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि आप सभी ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और यहां आकर अपना कीमती वक्त दिया हमें। कुछ अर्ज करना चाहूँगी। निगाहों में मंजिलें थीं, निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिरकर फिर संभले, हम गिरे और गिरकर फिर संभले। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, लेकिन चिंगारी इन आंधियों में भी जलती रही और इन्हीं आंधियों को पार करते हुए लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं विद द लिमिट ऑफ सक्सेस। सो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के इस इवेंट की। Okay, now I welcome respected Mr. Ojang sir, the AMD of this institute on the stage. Please give a big round of applause for Ojang sir, the AMD of this institute. Our honorable guest, I would like to invite on stage Mr. Nasir sir. तालियां बजती रहनी चाहिए। Now I would like to invite on stage Mrs. Pratibha Dikshit. पीछे से तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ तालियां बजाएं। Now I would like to welcome the shining stars of this evening. I welcome Mr. Shashwat Shangwan. I would like to welcome Ms. Mini Shukla. Please give big round of applause for Mini Shukla. I request Ojang sir for lamp lighting. Please come sir and lamp lighting. And other guests are also join him, please.
क्योंकि दीप लाइटनिंग में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स एंड एनर्जी होते हैं जो कि हम माँ सरस्वती की रिस्पेक्ट में चलाते हैं। प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। पीछे से आवाज नहीं आ रही। Mr. Nalin sir recently joined us. Please give a big round of applause for him. The most promising and hardworking Ojang sir, who has come a long way in the field of teaching and making his presence by his students as rank holders. He has delivered many IAS as well as nurtured this Ojang IAS Academy by his passion of dedicating work. Ojang is a leading academy as in top in ranking. Ojang provides online and offline classes. कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनके बारे में जितना भी बोलो कम ही पड़ता है और हमारे सर इज़ वन ऑफ देम. So I would like to request sir, please address this gathering. Thank you, sir. Good evening all of you. मेरी आवाज़ तो वैसे भी तेज़ है और आप लोग मुझे पहले मेरे ख्याल से सुन चुके हैं शायद. पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं स्वागत करता हूं मेरी पूरी टीम का, हमारे विनर्स का जो इस बार वो जीत के निकले, आईएएस के एग्ज़ाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ निकले और पूरी दुनिया को दिखाया कि जब आप सपने देखते हो और आप सपनों को पालना सीख जाते हो, सपनों के लिए खून पसीना लगाना सीख जाते हो, तो आप जहाँ पाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाते हो. लेकिन मैं अपनी बात कहने से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आप यहां क्यों आए हो? अगर ताली मत बजाओ, डांटने जा रहा हूं. चाहे क्लास हो चाहे सेमिनार, मुझे डांटने का हक है, ये मेरा राइट है. तो अगर तुमने मुझे सुना होगा, सुना है, मुझे लग रहा है सुना है, तो मैंने हमेशा एक ही बात कही, आईएएस बनने के लिए पढ़ाई मत करो. कैसे करो? आईएएस हो ये सोच कर और उस व्यक्तित्व को कैरी करो. ये व्यक्ति नहीं रह जाता है, ये व्यक्तित्व हो जाता है, ये पर्सनैलिटी हो जाती है और इसको धारण करने के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ आप क्यों आए हो ये जानने की बहुत ज़रूरत है और आप इन्हें क्यों सुनने जा रहे हो ये भी जानने की बड़ी ज़रूरत है. एक्चुअली में जिस दिन आप ये सपना देख लेते हो कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, अब जो बात कहने जा रहा हूँ उसको साइंटिफिकली आप जस्टिफाई कर रहे हो और मेरी बात पहुंच जाए, मुझे बताना कि क्या मैं अपने साइंस पर सही हूं कि नहीं. जिस दिन आप जब इस सोसाइटी में एक बड़ा सपना देख लेते हो और लोगों से बोल देते हो कि मुझे आईएएस बनना है, उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है, पूरी कायनात बदल जाती है. जो कल तक तुम्हारे बड़े दोस्त थे, वेल विशर थे, तुम्हें बड़ी अलग नज़रों से देखते थे, अचानक से तुम्हारे लिए उनका नज़रिया बहुत क्रिटिकल हो जाता है. और फिर जब आप उतरते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तब आप देखते हो कि अचानक से प्रेशर आना शुरू होता है, हर तरह का प्रेशर. मैं तो बच्चों से बात करता रहता हूं, मुझे तो प्रेशर की ऐसी इंतहा पता चल रही है कि क्या बताएं. आजकल प्रेशर फैशन में चल रहा है. लेकिन साइंस कहता है कि जब किसी चीज़ पर प्रेशर पड़ता है तो कंप्रेशन शुरू होता है, दबाव, संपीड़न कहते हैं. मानते हो? और जब संपीड़न होता है, किसी चीज़ पर कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, तो फिर उसके अंदर कोई रॉक है, कोई मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूलर चेंज शुरू हो जाते हैं. यस, उसका स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो जाता है. मानते हो? उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो दबाव में टूटकर बिखर जाता है और या तो वो मेटामॉर्फाइज हो जाता है. एग्री? चूने की चट्टान होती है, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाती है. मानते हो? कोयले पे जब दबाव पड़ता है वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है. मानते हो? ये तो पढ़ा होगा. हमारी पर्सनालिटीज़ भी कुछ ऐसी ही होती है. जब ये प्रेशर पड़ना शुरू होता है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं,
तो बेसिकली हमसे सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि हम टूट कर बिखर जाते हैं। और ये प्रेशर भी बड़ी बेइंतहा है, ये सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। उससे बच्चों ने कहा कि हर 6 महीने बाद हमसे पूछा जाता है इस बार प्री निकल जाएगा क्या, 6ठे महीने पूछ लिया जाता है, पैसा जो जुगाड़ा है बर्बाद तो नहीं होगा क्या। कई लोगों का तो ये हिस्सा हो गया है, मुझे तो कई बच्चों ने ये तक कहा कि सर उसकी शादी तय हो जाएगी। ये मुझे स्टूडेंट ने कहा सर इस बार आईएएस निकालना ही निकालना है, अब पता चला एक आध अटेम्प्ट कहीं खराब हो गया तो उसके बाद क्या होता है, सर कार्ड आ गया। तो कई तरह के जो है प्रेशर होते हैं। कई तो प्रेशर लेने के लिए परेशान है, बोले सर वो जब से पिक्चर रिलीज हुई, गाना रिलीज हुआ कि मेरा इंतकाम देखिए, मुझे इंतकाम लेना है, तो सर मैं सोच रहा हूँ कि दिल विल तोड़े तो मैं पढ़ाई शुरू करूँ। ये भी हालत हो रही है। खैर मजाक से दूर, ये सोसाइटी हमें बहुत तरह के प्रेशर देती है। हमारे कमरों से लेकर हमारे पूरे समाज में वो प्रेशर आता है। पढ़ाई कैसे करनी है, आईएएस कैसे बनना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, इस पर तो 4000 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, सालों से बोलता चला आ रहा हूँ, एक से एक टूल डेवलप किए हमने। लेकिन सवाल है कि जिस तरह आज आप यहाँ बैठे हो, कल ये भी वहीं बैठे हुए थे। कल जब भी इन्होंने शुरू किया था सेम यही प्रेशर यहाँ पर भी आया था, सेम वही दबाव। आज इनको आप अलग नज़रिए से देख रहे हो, आज इनको आप हीरो की तरह देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर मैं चला जाता हूँ, सही हूँ मेरी, ठीक है, तो फ्लैशबैक में जाके देखो कि जब वो भी किसी टॉपर का सेमिनार सुनने आते थे, वीडियो देखते थे, और मुझे लग रहा है कि मिनी इस समय अपने अतीत में ही है, वो दबाव शुरू करते हैं जरा हम वहाँ से। मैं तुमको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ कि इनको सुनो, मुझे तो बहुत सुना, इनसे अगर कोई चीज़ पूछ रहा है तो ये मत सोच रहा कि मैम कितने घंटे आप पढ़ते थे, ये इनकी कैपेसिटी थी, आपने कैसे लिखा ये बताएंगे। लेकिन जो चीज़ जानना वो ये जानना कि जब प्रेशर पड़ा था और टूट जाने वाली आदत आ गई थी तो आपने खुद को कैसे जोड़ा, खुद से कैसे लड़ा। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि अगली बार, अगले साल उसमें से बहुत से चेहरे मुझे यहाँ दिखाई पड़ने चाहिए। यही सफ़र ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है। यही सफ़र ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है, और इसी सफ़र को जो पूरा करने का नाम उसे हम लोग सक्सेस कहते हैं। कि कुर्सियाँ कैसे बदल जाएं, ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। तो जब आप तैयारी करने उतरते हैं, डर, अगर आपको लगता है कि केवल कुछ ही लोगों को लगता है, सबके लिए है। परेशानियाँ, टाइम से कभी भी काम पूरा ना हो पाना, 15 दिन हिस्ट्री पढ़ूँ या 15 दिन ज्योग्राफी, ये जो काम है ये हमेशा चलता रहेगा, टाइम टेबल कभी पूरा नहीं होता। कल सुबह पक्का 4 बजे उठूँगा, ये मत सोचना कि कुछ खास लोगों की कहानी है, ये कहानी घर घर की है। अब बस सवाल ये है कि इनमें से रोज लड़कर अपना रास्ता कैसे बनाते हैं, यही चीज़ है यहाँ पे। और मैं ये समझूंगा कि ये परिवार बहुत लकी है। ये परिवार जो एक हमने अपना एक स्लोगन उठाया, इनोवेशन इन एजुकेशन, उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। हमारी सफ़र को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम भी अभी 6.5-7 साल हम इस सफ़र में आगे बढ़े, और धीरे धीरे जो हम इनोवेशन करते चले गए उसका हमें परिणाम मिलना शुरू हुआ। तुम जानते हो इनोवेशन, जैसे मैं अक्सर क्लास में भी अगर आप लोग मुझे सुनते होंगे, इनोवेशन इन एजुकेशन की बात करता हूँ। एक छोटी सी चीज़, हम रिसर्च वर्ड के साथ बड़ा जो है वो फैमिलियर हैं। रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च, हम ये सब शब्द तो जानते हैं। इनोवेशन किसे कहते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और आप यहाँ बात करने के लिए आए, सिर्फ सुनना मत, बोलना भी मौके पे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं अपने सबसे किनारे के साथियों से बात करना शुरू करूंगा, इनोवेशन किसे कहते हैं। देखो बिल्कुल सीधे बैठ गए, मैं हर जगह क्लास की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है। चलिए एक हंसी मजाक में इसे इनोवेशन किसे कहते हैं, तब आप हमारा सफ़र समझ पाएंगे, और फिर आप समझ पाएंगे कि आपको इसी सफ़र के साथ जुड़ना है। तो मैं जानना चाहता हूँ इनोवेशन किसे कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट विद रिसर्च? वंडरफुल, वंडरफुल। आप बिल्कुल सही है। इनोवेशन में जो पहला वर्ड है इन, बड़ा खास बात है। इन का मतलब होता है कहाँ से, अपने अंदर से, ठीक है। हम लोग अक्सर मोटिवेशन ढूंढते हैं, इनोवेशन कहाँ शुरू होता है, सबसे पहले अंदर से। आप जब किसी भी बनी बनाई चीज़ पे, मुझे ये पढ़ाने का तरीका बताया गया था, ये रहा सिलेबस, ये रहा
तरीका सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कुछ नई चीज़ों की रिक्वायरमेंट की जा रही है। जब ये दोनों स्पीकर यहाँ आएंगे, कुछ खास शख्सियतें हैं। आप लोगों ने मुझसे अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी में पढ़ाई से ज़्यादा भी कुछ मांगता है। एक छोटी सी बात कहता हूँ, मिनी के बारे में एक छोटी सी बात कहता हूँ। इंटरव्यू के मार्क्स इनके रैंक 1 से ज़्यादा हैं। श्रुति आज नहीं पहुँच पाई ड्यू टू सम रीज़न। अब रीज़न क्या है? अगर आप थोड़ी सी भी जानने, मैं बताना चाहूँगा, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके आर्टिकल पूरा देश पढ़ रहा है, आप कंटेंट कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, आप नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आप खेल रहे हैं वहाँ पे, आप नेशनल लेवल पे एथलीट हैं। तो एथलीट अपने टेम्परामेंट के लिए जाना जाता है, वो प्रेशर में काम करना जानता है, वो स्टेमिना के लिए जाना जाता है। कहते हैं ना, जो खिलाड़ी होता है उसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। खेल पहले यहाँ खेला जाता है, फिर शरीर खेलता है। मैं सही हूँ? तो इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अपने आप को बनाया। हमें लगता है कि कोई एक सिलेबस होगा, कोई एक सेट पैटर्न होगा और हमने इसको पूरा किया और साल भर बाद नीली बत्ती लाल बत्ती घर पहुंच जाएगी, ऐसे हमें बताया जाता है। इससे अलग है यूपीएससी। इनोवेशन की शुरुआत हमारे अंदर से होती है और इसीलिए जब मैंने चैनल शुरू किया था तो सबसे पहला था कि आप खुद में विश्वास करना शुरू करिए। जब मैंने पहली बार ये लाइन बोली थी कि आईएएस हो ये सोचकर पढ़ाई शुरू करो, कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वो ये शायद भूल गए कि मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके ब्रेन को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी एक्सपर्टीज़ है। वहाँ पर जो चीज़ें हमने की, हमें ये समझ में आया कि आखिर जब सेम किताब इसके पास है, क्या इनके लिए एनसीईआरटीज़ अलग छपी थी? द हिंदू इनके घर कोई अलग वाला फेंक के जाता था? क्यों मिनी? ऐसा लगता है कि फेंक के जाता था कि इसी में से क्वेश्चन आएगा इस बार, बाकी लोगों में ये वाला खबर नहीं आई है। इनका एडिटोरियल अलग होता था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ना, हो सकता है इनके पास जो घड़ी इनको मिली हो उसमें 48 घंटे बजते हो, या 24 ही थे? 24 ही थे ना, या कुछ अलग घड़ी थी? सेम। अच्छा, हो सकता है ब्रेन का साइज बड़ा हो, लेकिन साइंस कहता है कि वो तो बराबर मैटर है। ऐसा भी नहीं। कुछ देख के बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत हैंडसम लोग हैं, अब और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सक्सेस की जो चमक होती है वो अलग ही लेवल पे होती है। तो ऐसा भी सर कोई बहुत बड़ा भी नहीं लग रहा है, ऐसा 4-6 हाथ पैर भी नहीं है कि 4-6 आंसर राइटिंग एक साथ चल रही हो। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या चीज़ है जो इन्हें सक्सेस तक लेकर जाती है? वही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और वो होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जिस दिन आउट ऑफ द बॉक्स यानी अपनी लीग से हटकर अपनी व्यक्तित्व के हिसाब से कुछ नया सोचना, उसी दिन इनोवेशन की शुरुआत होती है। और क्या कोई किसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है? मुझे बताइए, कोई किसी और के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है? नहीं। इसीलिए इनोवेशन में पहला वर्ड होता है इन। ये आप हैं जो अपने लिए सोच पाएंगे, ये आप हैं जो अपनी ताकत को समझ पाएंगे। और इनोवेशन जो है, दूसरी चीज क्या चाहता है? इनोवेशन चाहता है ब्रेवरी, साहस, करेज। तुम्हें क्या लगता है, तुमने अपने ही घरों में कई बार महसूस किया होगा कि आप कुछ नया करने जा रहे हो, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या? साल दर साल हम तो ऐसे लकी लोग हैं जिन्हें लबासना में हर साल जाने का मौका मिलता है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, तमाम तरह की चीज़ें। हमने इसके बाद की दुनिया और ज़्यादा अच्छे से देखी है। वहाँ ट्रेनिंग कैसे होती है, पर्सनालिटी कैसे चेंज किया जाता है, और क्या चीज़ वो कर रहा है, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या, सेकेंड इन पे वो क्या चीज़ रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। इनोवेशन में आपने देखा होगा, जब भी आप कोई नई चीज़ लेकर आते हो, ये ऑफिसर होने के नाते और ज़रूरी है, समाज उसका विरोध करता है। ठीक है, आप खुद अपना विरोध करते हैं। जिस दिन आज आप 8 बजे सोकर उठते हैं, कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, मेरे कहने से लगा लीजिए। आपकी बॉडी और माइंड आपका विरोध करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? राइट। तो आपको तरीके ढूंढने होते हैं। इनोवेशन हमेशा शुरुआती जो रास्ता होता है उसका बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। लोग घबराकर भाग जाते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात है, ये तुम्हें बहुत आसानी से तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए इसको इनोवेशन कहते हैं। और चाहे नोट्स बनाने का तरीका हो, बुक्स पढ़ने का तरीका हो, इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे आके इन चीज़ों को लगातार बताता रहा हूँ। तो यहाँ आप किस लिए आए, पहले ये पर्पस समझ लें। आप इनसे ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि आपने अपना मेटामॉर्फिक प्रोसेस कब शुरू किया था? आप टूटे या आप डायमंड में कन्वर्ट हो गए? और मेरे ख्याल से डायमंड यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं अब अपनी बात को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, एक्टिवली जब आप YouTube से अगर आए हैं तो आपको ये बात पता होगी, मैं हमेशा कहता हूँ पेन पेपर रेडी है, क्योंकि NLP कहता है कि आप सुनी गई चीज़ों का केवल 11% याद रख पाते हैं, यानी बाहर निकलते निकलते सब कुछ सन्नाटे में आ जाएगा। सो इट्स बेस्ट टाइम जो ये बताने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी,
और आप इनको ये समझें कि जिस प्रेशर से आप गुजर रहे हैं उस प्रेशर से कभी ये गुजरे होंगे, उसको कैसे हैंडल किया था। तो प्रेशर भी अलग अलग इनको मिला होगा। प्री से पहले अच्छों के हाथ पैर कांपते हैं। किसने किसने इस बार प्री दिया? कैसा रहा? प्रेशर पता चला? हमेशा यूपीएससी का एक और फुल फॉर्म होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ये गुगली फेंकने के लिए जाना जाता है। तो उस गुगली से कैसे बचना है, इस पर हम बात करेंगे। फिर मेंस का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है, इंटरव्यू का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। इस पूरे प्रेशर, और उसके बाद दो चीजें होती हैं, सक्सेस मिल जाए तो प्रेशर होता है और ना मिले तो प्रेशर होता है। फिर एक टेंशन होती है कि एक हफ्ते बाद प्री का एग्जाम है, दोबारा देना है, फिर से शुरू करना है। तो ये प्रेशर क्यों दिया जाता है? ताकि आप मेटामॉर्फिक हो। लेकिन यहाँ तो 90% लोग क्या हो जाते हैं, अपने और अपने सपनों को तोड़कर वापस लौट जाते हैं। यहाँ किसी को लौटना नहीं है, यहाँ अपना रास्ता तय करना है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, और शाश्वत जी, और पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं एक एक करके। प्लीज़ जोरदार तालियाँ, ये बड़ी एनर्जी होती है सर। I welcome Mr. Krishna Kumar sir. He joined us a little late. Please give a big round of applause for his honor. Hello. Very good evening to everybody who spared some time and came to hear Ojang sir, my colleague Mini ma'am, and myself Shashwat Sangwan. So before I introduce myself, I'll just tell you that I come from a very normal family, and as sir rightly mentioned, once I was on that side, and with extreme gratitude to the people who helped me, to the stars that favored me, and some effort from my side, today this milestone of my life has been completed. So it's not just my achievement. I extend my heartfelt gratitude to every person who has contributed in some form or the other in me reaching here. So today I think most of you have are yet to write prelims. Am I right? Who all have not written prelims till now? Can you show me hands? Quite a few of you. So you'll find a lot of guidance in a lot of places, Ojang sir being one of them. So they know better how to guide, because I took guidance from that side. What I can talk about is 3 things that I want to talk about and share with you, because you are going to embark on this difficult journey. तो आप लोग हिंदी में भी comfortable हैं? तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा natural रहेगा हिंदी में। तो 3 चीज़ों के बारे में मैं मोटा मोटा बात करता हूँ, जो शायद उनमें से कोई 1-2 चीज़ें आप में से किसी को छू जाएं तो शायद आपकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। And very thankful for all of you to come here. I'll try and make the 20-25 minutes that I have worth your time. And so the first thing that sir mentioned was motivation. So in my experience, motivation is something which I felt is somewhat momentary. वो कुछ समय तक हमें मोटिवेशन दिखता है। आप लोग सब एस्पिरेंट्स हैं, मैं भी था एक पॉइंट पे, तो हम जब देखते हैं कि ये लोग सक्सेसफुल हुए तो हमें एक मोटिवेशन आता है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मोटिवेशन थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड आता है, अनुशासन, या जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो आई थिंक वो जो एक वर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। तो जहाँ मोटिवेशन हमें काफ़ी दफ़ा फेल कर जाता है, फेल इसलिए नहीं कर जाता क्योंकि हम में कोई कमी है, फेल इसलिए कर जाता है क्योंकि जीवन ही ऐसा है कि कभी कोई और तरह की परेशानी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी फैमिली में कोई इशू हो जाता है, जिस वजह से हम लो फील करते हैं और हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो डिसिप्लिन एक चीज़ है। सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सुबह 5 बजे उठना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, तो वो भी एक तरह से डिसिप्लिन है, एक तरह का एफर्ट है। तो पढ़ाई तो आप करेंगे, थोड़ा एक रूटीन सा अगर आप बनाएं तो आई थिंक वो एक लंबे दौर तक आपको, एक लंबी जर्नी तक आपको सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ है स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी। तो मेरी जर्नी में अगर कोई एक चीज़ थी जिसने मेरे को बहुत हेल्प की इस मेंटल प्रेशर जो सर कह रहे थे उसको सस्टेन करने में, तो वो स्पोर्ट्स है। मेरे लिए वो स्पोर्ट रनिंग और बास्केटबॉल था, जिसमें सर ने मेंशन किया मैंने नेशनल गेम्स भी खेले हैं दिल्ली के लिए। तो जब आप एक किसी स्पोर्ट से जुड़े होते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी फिजिकली फिट रहती है और आपको एक पॉजिटिव
फीलिंग आती है। आप पढ़ाई के अलावा आप एकदम आपका एक माइंड स्पेस एक अलग जोन में चला जाता है और वो फोकस आपकी पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो लोग स्पोर्ट्स नहीं भी खेलते वो लोग शाम को आधे घंटे वॉक ज़रूर कर लें, आप योगा कर लें। इनफैक्ट सर के चैनल पे कुछ मोटिवेशन नहीं, मेडिटेशन की कुछ वीडियोस हैं, तो वो एक बहुत अच्छा, मतलब स्पोर्ट इज़ जस्ट वन एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी। तो बस मेरा एक ये मैसेज था कि आप लोग जब भी तैयारी में एक फुल ऑन घुसें, आधा घंटा पौना घंटा आप दिन में अगर आप निकालें तो आप फील करोगे कि जब भी आप पढ़ रहे हैं आपका फोकस, आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली एनहांस होगी। तो मुझे ऑलमोस्ट 4 साल मोटे मोटे लग गए इस तैयारी में, और एक चीज़ थी जो मैंने नहीं छोड़ी, वो थी स्पोर्ट्स। तो मुझे ये था कि चाहे यूपीएससी हो ना हो, बट एक चीज़ मेरे साथ रहेगी टिल द एंड। इसी से कनेक्टिंग मैं अपने थर्ड पार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, जो है फेलियर। तो फेलियर लाइफ में किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, वो आपके फैमिली में कभी हो सकता है, फ्रेंडशिप्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और उसी तरह से इस एग्जामिनेशन में भी हो सकता है। सर ने मेंशन किया कि अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल सही सर ने ये चीज़ बोली। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं अपने चांसेस को एनहांस करने के, और वंस वी आर डन विद दैट, आई थिंक जितने लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, जितने लोग गुड कर्मा में विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं यू नीड समथिंग टू बिलीव इन, एंड वंस यू बिलीव इन दैट थिंग योर जॉब इज डन। जो अपने हाथ में हम उसको कंट्रोल करते हैं, बट जो फेलियर है उस चीज़ से डील करने के लिए एक प्रेशर आता है, और उस प्रेशर से डील करने के लिए हमें एक प्लान बी होना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो प्लान बी मेरे लिए एक जॉब थी। ये आईएएस की जॉब मेरी 5वीं नौकरी होगी पिछले 4 सालों में। तो कभी कॉर्पोरेट में काम किया, फिर गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर 320 रैंक थी मेरी, तो मैं डिफेंस एस्टेट सर्विसेज में भी अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। तो द ओनली पॉइंट इज कि मेरे में भी कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी 34th रैंक आ जाएगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ही ऐसा है, इसमें हमारे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि मेरा रैंक आ रहा है या किसी का नहीं आ रहा। तो एक प्लान बी आपका एक जॉब हो सकती है, प्लान बी आपका एक हायर डिग्री हो सकती है, एक पार्ट टाइम कुछ असाइनमेंट हो सकता है, वॉलंटियरिंग का वर्क हो सकता है। उससे 2-3 फायदे जो मुझे लगे, एक ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है कि आपके कुछ शौक होंगे, आपको कहीं घूमना पसंद होगा, तो हर बार फैमिली से उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए रीच आउट करना कभी कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, स्पेशली 1-2 अटेम्प्ट जब हो, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी से हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी चीज़, एक हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। सर के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे लगता था, तो मुझे 5 बजे उठना ही पड़ता था अगर मैं 2 घंटे ऑफिस से पहले पढ़ना चाहता था। ऑन दी अदर हैंड, जब मेरा ऑफिस नहीं था तो 10-11 बजे से पहले डिसिप्लिन लाना या मोटिवेशन लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो एक आपके पास एक ऑल्टरनेटिव, एक प्लान बी भी साथ साथ चल रहा है, और आप इस एग्ज़ाम को भी दीजिए। थर्ड, जो मुझे लगता है कि आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली एनहांस होती है, आपका प्रेशर कम हो जाता है जब आप एक साइड में कोई एक आपकी एक्टिविटी चलती है। तो मोटा मोटा यही इस चीज़ की समरी है कि आप इस एग्ज़ाम में जब तक एक थ्रेशोल्ड ऑफ नॉलेज तक आप पहुँचे, तब तक आप फुल टाइम तैयारी कीजिए। वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैंने भी 6-7 महीने का गैप लेके वो किया था। उसके बाद आप उसको रिवाइज करते रहिए, उस पर वैल्यू एडिशन करते रहिए, बट साथ साथ एक प्लान बी अगर आपके पास रहता है तो काफ़ी बार प्रेशर हैंडल करने में मेरे समझ में बहुत आसानी होती है। तो 3 चीज़ों के बारे में मैंने बात की। पहला, मैंने आपको एक वर्ड दिया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रातों रात नहीं आता, मतलब कई साल भी लग जाते हैं। कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं अच्छी विल पावर के साथ, बट कुछ मेरे जैसे होते हैं कि इधर उधर ठोकर खा के 3-4 अटेम्प्ट में समझ जाते हैं कि हाँ, अगर एक रूटीन है तो लाइफ इस एग्ज़ाम के रिलेटेड थोड़ी सी आसान है। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ में खुद को आप एंगेज रखिए, चाहे वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। अगर कोई टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे फुटबॉल, तो प्लीज़ उसको मत छोड़िए, क्योंकि इट्स ऑल्सो मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। आप अपने फ्रेंड से भी मिलते हैं, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने बोली, वो एक थ्रेशोल्ड ऑफ नॉलेज अचीव करने के बाद अगर प्लान बी आपके पास कोई रेडी है, तो इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस से डील करने में काफ़ी आपको हेल्प होती है। कुछ मिथ्स वगैरह होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे आप लोग तैयारी में आ रहे हैं, मेरे मन में डाउट थे कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने को हम कहीं ना कहीं पे ग्लोरीफाई करते हैं। तो मैं जॉब में था पूरे टाइम, शायद 4 या 5 घंटे मेरी पीक होती थी जो मैं पढ़ पाता था। बट एक सही गाइडेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जामिनेशन का, कि एक सेइंग है कि बिफोर यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर टू सक्सेस, just make sure it's leaning against the right wall. So that saying is very appropriate. Now if one book of art and culture or one module of art and culture can do the trick for you, and
आप 3 किताबें पढ़ रहे हो तो आपका एफर्ट तो बढ़ रहा है, आपके मेंटल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और चांसेस आपके इतने अफेक्ट नहीं हो रहे। तो आपको थोड़ा सोच समझ के अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आई थिंक सब 20s में ही होंगे, मैं भी 26 साल का हूँ, आप भी अराउंड उसी रेंज में होंगे, 25 प्लस माइनस 3-4 साल कुछ है। तो उस टाइम की आप कीमत रखिए। अगर आप कोई किताब, कोई नोट्स उठाने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार खुद से पूछ लो कि क्या इसकी रेलेवेंस है। तो यूपीएससी हमें 2 हिंट्स देता है। एक हमें देता है सिलेबस जो यूपीएससी की वेबसाइट पे आता है, जिसमें हमें सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स लिखे होते हैं। दूसरा हिंट वो देता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इन 2 हिंट्स के अलावा मेरी समझ में यूपीएससी इज़ लाइक अ ब्लैक बॉक्स, कि आप एक इनपुट डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, और एक आउटपुट निकल रहा है। वो ओजांग सर और जो वेटरन्स हैं वो लोग बहुत बेहतर समझते हैं उस ब्लैक बॉक्स में क्या होता है। बट मतलब मेरा इतना सही पॉइंट था कि आप लोग यूपीएससी का जो ऑथेंटिक वो है, सिलेबस है या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसको बेस मांग के आप फिर उसके बाद आप जगह जगह से थोड़ा गाइडेंस की तरफ आप बढ़िए। और आप ही खुद उस चीज़ के, जो सर ने कहा कि इनोवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर वो चीज़ विश्वास रखना है कि जैसे जब मैं 4 घंटे पढ़ता था तो बहुत लोगों ने बोला कि यार जॉब छोड़ दे, 2 अटेम्प्ट हो गए नहीं हो रहा, या जैसे भी था। बट मुझे था कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, विच वॉज अगेंस्ट ऑल एडवाइस। बट एट सम लेवल आई हैड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं जॉब के साथ होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है। तो आई थिंक वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कह सकते हैं उसको एक तरह से, कि मैंने खुद पे जो कॉन्फिडेंस रखा। तो ब्रॉडली ये 4-5 चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो मैं 6-7 डाउट्स आई थिंक कॉमन ही होंगे, तो वो मैं एड्रेस करने में आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दोज डाउट्स। तो आप में से कुछ लोग डाउट्स अगर पूछना चाहते हो प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के बाहर, तो आई रियली वेलकम दोज क्वेश्चंस। तो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्री और मेंस हम साथ साथ पढ़ सकते हैं क्या? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्जेक्ट्स जो हैं कोर के, अगर आप सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करेंगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि 4-5 मेन पिलर्स हैं जिन पे बेस्ड प्रीलिम की तैयारी भी होती है और मेंस की भी होती है। आपको वो फाउंडेशन जो मैं बात कर रहा था, एक थ्रेशोल्ड ऑफ नॉलेज आप लोगों में होनी चाहिए, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो बेस आप बिल्ड करते हो प्रीलिम्स के लिए, इसी स्टार्टिंग बेस पे ही आप मेंस की तैयारी बिल्ड करते हो। तो सीइंग दिस एग्जाम्स डिफरेंटली माइट और माइट नॉट बी हेल्पफुल। तैयारी दोनों की डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि मेंस में हमें आंसर्स लिखने होते हैं, तो आंसर राइटिंग को हम सेपरेट कर देते हैं और सिलेबस को हम एक पार्ट करके हम डील करते हैं। तो वो एक तरीका हो सकता है जिससे आपको बेनिफिट मिले। हाँ जी, हाँ जी सर। ऑप्शन तो सर इज आस्किंग कि हाँ जी, हेलो आप किस ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ देख? पॉलिटिकल साइंस। तो सर इज आस्किंग कि ऑप्शनल की तैयारी हम लोग खुद से कर सकते हैं क्या, और ऑप्शनल प्लस जीएस साथ में कर सकते हैं क्या? सर ने एक वर्ड बोला था इनोवेशन, मैं फिर से उधर ही लेके जाऊंगा कि आपको अपने अंदर देखना है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं और आप अच्छी समझ रखते हैं तो आप फिर अपने ऊपर रिलाई कीजिए और आप जो भी आपके पास बेस्ट मटेरियल है, टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ले लीजिए। मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था तो आई डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग, बट आई रोट सम टेस्ट, सो आई थिंक दैट वाज बेनिफिशियल। ऑप्शनल और जीएस की तैयारी मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा और आप लोग फील फ्री टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन स्टाइल। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, तो जब मैं जीएस का वही चक्कर पढ़ पढ़ के थोड़ा बोर हो जाता था तो एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती थी मुझे एंथ्रोपोलॉजी की नई रिसर्च पढ़ने में, जो भी लेटेस्ट वैल्यू एडिशन हो रहा था या टेस्ट में सीख रहा था, तो एक माइंड एक मोनोटोनस साइड में नहीं जाता, तो साथ में आप पढ़ सकते हो, उसका ये बेनिफिट है। अलग अलग भी अगर आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। तो इट्स अ कॉल दैट यू हैव टू टेक एंड मेनी रोड्स लीड टू रोड को चुनो, बट उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और PSIR तो आई थिंक काफ़ी चलता हुआ ऑप्शनल है, तो उसमें आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छे नोट्स, अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू। तो सर इज़ आस्किंग कि मैंने जो बातें मेंशन की थी सिलेबस के सब हेडिंग्स और क्वेश्चन पेपर को हम किस तरह से इंटरप्रेट करें कि वो हमारे फाइनल स्कोर शीट में रिफ्लेक्ट करें। तो देखिए, जो क्वेश्चन जो जीएस के हमारे टॉपिक्स की लिस्ट दी होती है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री, तो उन्हीं टॉपिक्स के अंदर ही क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आपको जैसे मैं एक टॉपिक देता हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स का टेररिज्म पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन बॉडीज़ का हमारे एनिमल तो यू शुड हैव दैट बेसिक कंसेप्ट क्लियर इन योर हेड।
एंड वंस यू हैव दैट, आप उसको आंसर राइटिंग में आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। फिर आप किसी टेस्ट सीरीज से जाकर उसको इवैल्यूएट कीजिए, आप टॉपर कॉपीज़ देखिए कि वो किस तरह से लिख रहे हैं, क्या वो कुछ अलग से डायग्राम बना रहे हैं जिससे उनको नंबर मिल रहे हैं। तो वो जो एक गाइडिंग लाइट्स हैं, वो जो सिलेबस का एक हर एक वर्ड जो मैंशनड है वो एक गाइडिंग लाइट है। सेकेंड, जो आप कह रहे हो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन क्वेश्चन पेपर हमें एग्जामिनर की साइकोलॉजी के अंदर एक पीक देता है कि एग्जामिनर इनमें से सिलेबस में अगर 10 टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हमेशा फोकस में रहते हैं। जैसे GS3 इकोनॉमिक्स में दे यूजुअली आस्क अबाउट स्टैटिक नॉलेज कि GDP हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि GDP हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि एग्जामिनर हमारा स्टैटिक नॉलेज चेक कर रहा है। जो सर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सेम है, तो ये प्रीलिम्स में भी हम यही सेम चीज़ पढ़ते हैं। तो वो हमें उन टॉपिक्स की तरफ एक लाइट देता है कि ये टॉपिक्स आप और अच्छे से प्रिपेयर करो। काफ़ी बार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वही क्वेश्चंस रिसाइकिल होके भी आते हैं, तो आप 5-6 साल के अगर क्वेश्चंस करके जाओ तो आई थिंक 30-40% हिट रेट आ जाता है। स्पेशली मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल होते हैं, मैथ्स वगैरह पे मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट उनमें डेफिनेटली वो हिट रेट आता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक कि जो भी टॉपिक मैंशनड है उस पर आपका एक बेसिक लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कंसिस्टेंटली रिसाइकिल हो रहे हैं, उन पे आप थोड़ा ज़्यादा अपना एफर्ट डालिए। जैसे एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए टाइम कम होता है, तो आप उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा टाइम दीजिए जो लगातार पूछे जा रहे हैं, और आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ट्राई कीजिए, अपने नोट्स बनाएं। तो इस तरह से जो मेरे को समझ आया इस एग्ज़ाम में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो नोट्स हम बनाएंगे उसमें जो रिफ्लेक्ट करेंगे वो चीज़ें, तो हमें एक तो ये बता दीजिए कि कितने साल तक का देखना है, और दूसरा ये बता दीजिए सर कि उसको मतलब हम मैनेज कैसे करें कि जैसे एक ही टॉपिक है उसके जैसे एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस मान लीजिए आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, तो उसमें हम जो नोट बनाए तो लिमिटेड जो क्वेश्चंस भी कवर हो जाए उस नोट में, और वो लिमिटेड उसमें भी रहे ताकि इजीली रिवाइज हो जाए मेन से पहले। तो उस चीज वो कैसे करें, मतलब वो क्योंकि जैसे मैं करता हूँ तो वो बहुत इलैबोरेटेड हो जाता है और फिर मैं उसे रिवाइज नहीं कर पा रहा मेन से पहले। तो आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये कह रहे हैं कि नोट्स हमारे इतने वाइड हो जाते हैं कि हम उन्हें रिवाइज नहीं कर पाते। तो जो चीज़ मैंने फील की वो मल्टीपल रिविजन्स है कि आप पहली बार जैसे यहाँ पे 4 पेज लिखे हैं, आप पढ़ोगे आपको टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम आप हाईलाइट कर लो, थर्ड टाइम एक रेड पेन यूज़ कर लो। बाय द टाइम यू रीच योर 4th रिविजन 1/10 ऑफ द टाइम लगता है। सेकेंडली, एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह रहे हो उन पे थोड़ी और मेहनत कर लो और उनको थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लो। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, राइट। सो एडिटोरियल्स, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू रीडिंग द एडिटोरियल्स। आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग दैट जो एडिटोरियल एक लिखा जाता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा जाता है, और जब आप उसको पढ़ते हो तो आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होती है, आपको एक आंसर राइटिंग का स्टाइल भी इन्हांस होता है। तो जनरली आप ट्राई करो दिन के 2 एडिटोरियल्स तो पढ़ लो। जो मेरी सलाह है कि आप 2 से 3 एडिटोरियल्स दिन में आप पढ़ो, उससे आपकी वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन की जो स्किल है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। मैं 2 तो एडिटोरियल पढ़ लेता था पिछले 3 सालों में, और वो मेरे ऐसे के मार्क्स में रिफ्लेक्ट किया। तो आई थिंक नॉलेज बढ़ रही है, एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, आंसर राइटिंग की स्किल बढ़ रही है, वोकैबुलरी बढ़ रहा है। तो पढ़ लो एडिटोरियल्स, समरी भी देख लो रिवीजन के लिए, बट पढ़ ज़रूर लो, थोड़ा मेहनत करनी ज़रूरी है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी मैम। सर माय क्वेश्चन इज, जैसे हम लोग एक मंथ में मैंने ऐसे प्लान बनाया कि ज्योग्राफी पढ़नी है, एंड फिर ज्योग्राफी पढ़ा कंटिन्यूसली। आफ्टर दैट फिर मैंने हिस्ट्री उठाया। तो सर फिर जो हम पढ़ते जाते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, एंड फिर पीछे का जो होता है वो भूलते जाते हैं। तो फिर जब रिवीजन को बैठते लाइक शॉर्ट नोट एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। जैसे हिस्ट्री पढ़ा तो फिर ज्योग्राफी का भी लास्ट में देखना, फिर जब हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ फिर उसका देखते रहना, तो उसको कैसे डील करें। एंड तो फिर से मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और इनोवेशन की तरफ आपको पॉइंट करूँगा कि आपको अपना एक स्टाइल डेवलप करना है जिससे आप उसको और इफेक्टिवली करो। तो मैंने जो स्टाइल डेवलप किया था वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उस तरह से आप कुछ सोचिए। तो प्लीज़ हैव अ सीट। तो मैम पूछ रही हैं कि काफ़ी बार हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो इतना वास्ट हो जाता है कि हम भूल जाते हैं हमने पहले क्या पढ़ा था। तो मैं क्या करता था, दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। तो वो एक चेंज ऑफ माइंड या चेंज ऑफ मूड तरह से आप देख लो कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो और साथ में आप थोड़ा ऐसे राइटिंग कर लो, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ लो, तो वो माइंड जो है वो अलग अलग एक जगह पे फोकस करके एफिशिएंसी कम नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि दिमाग से इन्फॉर्मेशन इरेज हो जाती है, वो एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है, और वही दिमाग ही हमारा दुश्मन बन जाता है उस केस में। बट उसको डील करने के लिए आप मल्टीपल रिविजन्स ही कर सकते हो। तो आप हफ्ते में एक दिन थोड़ा जो आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा है उसके लिए आप थोड़ा रिविजन का टाइम निकाल लीजिए। महीने में एक बार सेकेंड रिविजन कर लीजिए,
तो आई थिंक मल्टीपल रिविजन्स इज़ द ओनली सोल्यूशन. एंड कष्ट होता है, बट आई कैन शेयर वन थिंग कि पहला रिविजन आप करते हो तो आपको कष्ट होता है, बट दूसरे रिविजन तक व्हेन यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो पहला रिविजन इज द हार्डेस्ट. वंस यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड इट बिकम्स bearable and manageable, and by the time you reach the exam day, the night before the exam when you are facing all kind of pressure and stress, that confidence कि यार जो भी मैंने एक बार पढ़ा है वो मेरे दिमाग में सेट है. When you do that final revision, I think that is also a very important component of enhancing your performance in the exam. So multiple revisions I would say. Secondly, you can study multiple subjects in one day कि current affairs के साथ economics को mix कर लो, वो combination जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं. So this was the way I dealt with it. आई एम श्योर और भी तरीके होंगे, आप कुछ बेहतर भी सोच सकते हो अपने लिए, बट थोड़ा सा आप एफर्ट करो कि स्टडिंग हाउ टू स्टडी, वो थोड़ा आप सोचोगे तो आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा. हाँ जी सर. हाय सर. सर मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ एंड माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे हम लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो समटाइम आई फील कि जॉब क्विट कर देनी चाहिए. फुल फ्लेज तरीके से हमें टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने के लिए. मैं ओजांग सर के मतलब क्लासेस काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ. आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 months. सो सर माई क्वेश्चन इज़ कि शैल आई लेफ्ट द जॉब फॉर फुल फ्लेज प्रिपरेशन, और जैसे जॉब के साथ मतलब कैसे उस प्रेशर को टैकल करें, क्योंकि समटाइम इट फील्स कि सर 4 घंटे मिल रहे हैं, 5 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन क्या पता IAS की प्रिपरेशन इससे ज़्यादा घंटे हमसे एक्सपेक्ट. ठीक है, आप बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे हो. सर इज़ आस्किंग कि प्रेपरेशन के साथ जो घंटे मिलते हैं, तो देखो UPSC के फॉर्म में जब आप डाफ भरते हो उसमें ये तो कॉलम नहीं होता एवरेज आवर स्टडी डेली. एग्जाम डजंट डिस्क्रिमिनेट आप कितना पढ़ रहे हो. सेकेंडली उस चीज़ का जवाब बस आप ही दे सकते हो कि क्या ये जॉब मेरी तैयारी में एक हिंडरेंस है या फिर एक पॉजिटिव वो है. वो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वेदर दिस इज एनेबलिंग मी और डिसेबलिंग मी. फर्स्ट थिंग. थर्ड थिंग, जो आप कह रहे हो दिन में 4 घंटे मिलते हैं, तो आप ऐसे मत सोचो कि मुझे 4 घंटे मिल रहा है. आप ऐसे सोचो कि जो अगला 1 घंटा मेरे पास है उस 1 घंटे में मैं मैक्सिमम पढ़ाई करूँगा. मैं अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में पढ़ता था, मेट्रो से ऑफिस जाता था, मेट्रो में कोई टेस्ट सीरीज कर लिया, तो टेक 1 day and 1 hour एट अ टाइम. फिक्स कि 1 घंटे में इतना पढ़ लूँगा. उससे एक पॉजिटिव बूस्ट, एक इनर्शिया आपका बिल्ड हो जाएगा कि आप रादर देन हैविंग लो कॉन्फिडेंस दैट आई स्टडीड ओनली 4 hours, आपको जो पढ़ रहे हो उस चीज़ में कॉन्फिडेंस मिलेगा. तो मतलब आपको करनी है क्विट, आप कीजिए. बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते, बट उसका जवाब आप खुद ही दे सकते हो. एंड बेस्ट विशेज दैट यू आर ऑल्सो इन दैट ट्रेन, जहाँ पे मैं भी बहुत सेल्फ डाउट में था और सब लोग कहते थे छोड़ दे, बट मेरे को था कि maybe I can try with this. So I got on the other side. Best wishes to you to also follow that. ठीक है, तो आपने कहा कि पहला क्वेश्चन क्या था कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं. हाँ देखिए, मैंने 2018 में पहला प्रीलिम दिया था जो मेरा फेल हो गया. तो मैंने अगले साल तो फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने तो ऐसे डील किया था उस प्रेशर से. मैं जॉब करने चला गया था, बट फिर वो वाला भी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक अटेम्प्ट और दे सकता हूँ. तो मैं वापस आया. तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है. जो मैंने दूसरी पॉइंट मेंशन की थी, पहली पॉइंट थी डिसिप्लिन, दूसरी थी स्पोर्ट्स और तीसरी थी प्लान बी. तो मेरे लिए वो चीज़ स्पोर्ट्स थी, आपके लिए वो चीज़ फ्रेंड से बात करना हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है. तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ढूंढनी है उस चीज़ से डील करने के लिए. मेडिटेशन हो सकता है. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट. सेकेंडली, आप कह रहे हो ऑप्शनल. जितनी मेरी समझ है UPSC की नोटिफिकेशन में आप पेज 40-50 तक जाओ तो ऑप्शनल का भी सिलेबस होता है. तो एक बार आप उसको देख लीजिए. मैम पूछ रही हैं क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें एक टीचर की आवश्यकता होती है. हाँ, सर ने एक वीडियो में बोला था कि हमें आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट इट. तो द थिंग इज ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें डेप्थ चाहिए होती है. हाँ. जनरल स्टडीज इज लाइक जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, बारिश की हो रही है तो मैंने बोल दिया साउथ वेस्ट मानसून से हो रही है, बट आप यही एक आंसर ज्योग्राफी के ऑप्शनल स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वहाँ आप GS का आंसर लिख के आओगे, द पर्सन हु इज चेकिंग इज प्रॉब्ली एटलीस्ट MA तो होगा ज्योग्राफी में सर. तो उस लेवल की डेप्थ रीच करने के लिए मोस्ट ऑफ अस स्ट्रगल विद दैट. So in that context, sir said it as a general thing कि to have that level of depth, having a guide or a mentor or a coaching might be beneficial, and I think for most people that is true. So sir can't speak for every person in particular because sir I think address like almost 2 million people. So एक last question. हाँ please पूछिए. हाँ जी. जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें क्या हुआ था? मुझे आज तक नहीं पता चला कि आखिर होता क्या है उसमें. हाँ जी, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपके इंटरव्यू में हुआ क्या था. ठीक है, तो क्या होता है उसमें. तो जैसे मान लो ये पीछे इंटरव्यू का रूम है, तो एक बाहर एक ऐसे चेयर होती है, उस पर ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है. और उस चेयर पे जब ऐसे बैठे होते हैं तो ऐसे ऐसे पैर हिलते हैं.
राइट, ठीक है। एक वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट होती है, जैसे कैमरा है, वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है, तो फिर आपको अंदर जाना ठीक है। उसके बाद जैसे बाहर वो 2-3 जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं वो आपको शांत कर रहे होते हैं कि पानी पी लो, एक कोई कभी मेरे को टिश्यू पेपर भी दे रहा था कि यार पसीना पोंछ लो। But when you enter the room, there is an aura, and that aura is, I think, because of the chairperson, esteemed chairperson, who's usually a distinguished civil servant in most of the board cases. Secondly, there are 3 to 4 other members who are sitting there. All of them have exemplary government service, specialist experience in psychology or armed forces, so they make you feel comfortable, and that is when your nerves calm down, and that is the moment you have to quickly transition from being a little nervous, which is normal, to somebody who you actually are, because it's a test of your personality. And मेरी पर्सनालिटी 24 घंटे नर्वस रहने की नहीं है। मेरी पर्सनालिटी प्रॉब्ली जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी भी थोड़ा हूँ नर्वस, क्योंकि इतने सब लोग सुन रहे हो, बट यू हैव टू ट्रांजिशन इन दैट मोड, एंड वंस यू ट्रांजिशन इन टू दैट मोड, आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर हियर फॉर पब्लिक सर्विस। तो किसी की पर्सनालिटी में तो एज सच कोई फ्लॉ नहीं है, बट आपको उस मोड में आना है कि आप अपने नेचुरल सेल्फ में आ जाओ। सो वंस यू कम टू योर नेचुरल सेल्फ, दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, अपने कोई काम किया उसके बारे में आपसे पूछते हैं, कुछ करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ अगर आप जाओ, एक पॉजिटिव रहो, और जैसे आप हो वैसे रहो। आई थिंक इस बार वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में, पिछली बार कम थे, तो यही डिफरेंस था दोनों बार। बाकी पर्सनालिटी तो इतनी चेंज नहीं हो सकती 8 महीनों में, बट एक नेचुरली मुझे फील हुआ कि मैं उस जोन में ट्रांजिशन कर पाया, जिसकी वजह से मार्क्स अच्छे थे। मिनी मैम हैज ऑल्सो डन वेरी वेल। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मैं आपसे कुछ अभी ये शायद पूछना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये इनोवेशन की थी कि मैं सुबह के टाइम पढ़ता था जब मेरा माइंड और बॉडी रेस्टेड होता था, और शाम को मैं रनिंग या बास्केटबॉल जो भी स्पोर्ट्स खेलता था, तो उससे बॉडी थक जाती थी तो नींद भी अच्छे से आ जाती थी। तो थोड़ा आप टाइम मैनेजमेंट जो सर कह रहे थे उस चीज़ पे फोकस करोगे, सुबह आप पढ़ लो, शाम को खेल लो, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, आपको पर्सनली फिर प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए एक एथलीट का करियर, वो भी बहुत प्रेस्टिजियस करियर है, उस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है या इसमें बढ़ना है, क्योंकि दोनों चीज़ फुल कमिटमेंट मांगती हैं। और सर ने कहा कि घंटे 24 ही हैं। हाँ जी, आप कॉइन टॉस करो, बढ़िया सिक्का उछालो, और हेड जाएगा तो सर के पास आ जाना, टेल जाएगा तो ग्राउंड में। बात मैं कहूँगा, जिंदगी में बहुत पहले बचपन से सिखाया गया कि एक साथ 2 नाव पे सवारी करना डूबने की गारंटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ अच्छी या गलत है, लेकिन लाइफ में जब आप समझते हैं कि अभी गवर्नमेंट जॉब, हम कॉमनली वर्ड यूज़ कर देते हैं। अगर मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सिंपली, मेरे से बहुत सीनियर टीचर नलिन सर हैं, कृष्णा सर हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ये जॉब नहीं है। एग्री करते हैं आप लोग? ये करियर है, ये करियर है, और बहुत से लोग इसका अंतर नहीं जानते, उनको लगता है कि सरकारी नौकरी है। इट्स अ चॉइस ऑफ लाइफ, इट्स नॉट चॉइस ऑफ ईयर्स। ये पूरी जिंदगी की चॉइस है। एक बार जब लवासना चले जाओगे ना, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कर दिया जाएगा कि सोचना, समझना, कपड़े पहनना, उठना, बैठना, तुम उसी तरह सोचोगे। वहां जो ट्रेनिंग होती है, तुम्हें ऐसा तराश देंगे कि तुम्हारी बातें, सोच, हर चीज तुम्हारी वही हो जाएगी। तुम घर में भी वैसे बिहेव करोगे। मेरे ही घर में आइए, अगर आप उनसे रात में मिलने चले जाएं, तो लबासना में ये होता है कि आपको जब खाना खाने जाना होता है तो उसकी ड्रेस अलग होती है, जब पीटी करने जाना होता है ड्रेस, आपको वहां फाइन देना पड़ता है, जब आप करिकुलम एक्टिविटी के लिए जाते हो तब अलग होती है, जब आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो लेक्चर हॉल में तो वहां ड्रेस अलग होती है, यूनिफॉर्म अलग होता है, और बहुत ही रिस्ट्रिक्शन, और आपको जाना पड़ता है, पहाड़ियां चढ़नी पड़ती हैं जनाब। हॉस्टल से मेस तक जाने में भूख मर जाती है इंसान की, क्योंकि पता चला 2 पहाड़ियों के ऊपर है। यह स्थिति वहां पे होती है। और आगे चलकर जब आप सर्विस में जाते हो, आप रात में कोई आपसे मिलने आपके बंगले जब पहुंचेगा, तो आप ऐसा नहीं, आपका भी मन है बरमूडा पहन के, टी शर्ट पहन के, बढ़िया लेवाइस की बढ़िया से घूमे, गोवा वाली टी शर्ट प्रिंट वाली, आप वेट कराते हो, प्रॉपर ड्रेसअप करते हो, फिर आप विजिटर से जाकर मिलते हो। ये प्रोटोकॉल सिखाया जाता है, दीज आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। लाइफ में जब आप, जिस दिन आपने ये सोच लिया आपको यूपीएससी में जाना है, उसी दिन आप ये सोच लो एक नई पर्सनालिटी को जन्म देना है। वो बिल्कुल इससे अलग है, वो सोच समझ, लड़ने, सब चीजों में। और जब वो चीज है ना, तो सिर्फ वही चीज है। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि आज इतना कंपटीशन है कि आप सिर्फ एक ही चीज पा सकते हो, सिर्फ एक ही चीज।
तो सिर्फ उसी पे फोकस कर दोगे तो ही वो तुम्हें मिलेगी, राइट। और अगर मैं सही हूं तो लवासना में इतनी अपॉर्चुनिटीज गेम्स की हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक से एक बेस्ट ट्रेनर। आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे ये ट्रेनर चाहिए और वो आपके लिए हासिल हो, वहां पर पहुंच जाएगा। अभी रिसेंटली मैं जब गया लवासना में तो इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल का, जो शायद हमारे बाहर के एथलीट्स को अवेलेबल नहीं है। और आप चाहे चाहो या ना चाहो, रो या गाओ, आपको वहां के अटेंडेंस देनी है और उनके साथ काम करना है। ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो तैयारी के दौरान ये एक्सरसाइज करना, चलना फिरना सब भूल गए और वहां जाकर उनको जुम्बा की क्लास ज्वाइन करनी है और वो करना है। ट्रेनर्स हैं और उनको करना पड़ेगा। सो मैं आपसे एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को झोंक दीजिए, तभी वो मिलेगा। और मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ इनकी तरफ से, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, मतलब यूपीएससी का फर्स्ट टाइम प्रेशर डील करेंगे? मेजॉरिटी है। और वो कितने लोग हैं जो ये आग झेल चुके हैं? मैं भी हाथ खड़ा कर दूं। आपने सबसे ज़्यादा झेली है, आपने सबसे ज़्यादा वो डर झेला है। मैं बस एक चीज़ आपसे, एक क्वेश्चन इनकी तरफ से पूछना चाहूँगा, जो लोग ये आग झेल रहे हैं अभी, जो प्रेशर डील कर रहे हैं, आपने भी सेम इसी सिचुएशन में डील किया था। मैं उस दिन से शुरू करना चाहता हूँ, फर्स्ट डे, और उस दिन जिस दिन आपको पहली बार नाकामयाबी मिली। कामयाबी मिलने के बाद कोई कहानी पूछता है? पूछती तुम नाकाम हो। तो बस मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ, वो अटेम्प्ट जब आपके मन में गिव अप करने को आया था और जब आप वहां से आपने रिबाउंड किया अपने आप को और फिर से आज एक पर्सनालिटी के रूप में हमारे सामने। पक्का? प्लीज। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं आप सबको 2018 में लेके जाना चाहता हूँ, जब मैंने पहली बारी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था। आई वॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज एंड मैं 5 पॉइंटर था अपने कॉलेज में। बिट्स पिलानी से मैंने पढ़ाई की है। 5 मतलब एकदम जो लास्ट के 10% में रहते हैं। तो जॉब की गुंजाइश तो बहुत कम थी, MBA वाले भी नहीं ले रहे थे, तो कुछ सीनियर्स तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की। तो मैंने भी सोचा साथ में 2-2.5 महीने पढ़ के प्रीलिम देते हैं कि बिट्स तो क्रैक कर ही लिया, नंबर भी ठीक ठाक रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, तो हो जाएगा। बट जब पेपर देके मैं घर आया, मैंने कोचिंग की मिलाई, तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है और काफ़ी ख़राब फील कर रहा था। फिर मैं घर आया, मैंने अपने फादर से शेयर किया कि पापा ये सब नहीं हो पा रहा मेरे से। तो हाँ जी। तो मैंने शेयर किया अपने फादर से कि मेरे से कि नहीं हो पा रहा है और मैं और अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। तो मेरे फादर ने एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे बचपन में ही बोली थी कि कॉलेज की डिग्री तक ही विल अफोर्ड मी फाइनेंशियली, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। तो अगर तुम्हें करना है तो तुम कैसे भी करो, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड हमेशा करता रहूँगा। तो उस पॉइंट पे आई थिंक मैंने रॉक बॉटम हिट कर लिया था। मैंने 10-12 किलो वेट बढ़ा लिया था। यूपीएससी प्रीलिम फेल हो गया था, जॉब थी नहीं, घर पे मैं ऐसे सोता रहता था 11 बजे तक। ऐसे पापा फिर किसी दिन ऑफिस नहीं जाते थे तो देखते थे कि ये क्या कर रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा। तो वो उस काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि एट दिस पॉइंट लाइफ के कई सारे पिलर्स होते हैं। एक हमारा प्रोफेशन है, करियर जो सर ने बोला, एक हमारी फिटनेस है, एक हमारी फैमिली, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। तो मुझे ये था कि ये करियर वाला जो मेरे को लॉन्ग टर्म करना है, ये तो अभी मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं दोबारा अटेम्प्ट दे सकता हूँ। तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। मैं दिन में 10-12 जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। डिग्री ठीक ठाक थी, कुछ कहीं से मेरे को ऑफर मिला जॉब का, तो मैंने वो पहली जॉब गुड़गांव में ज्वाइन की और वहाँ से चीज़ें सुधरने लगी। थोड़ा फाइनेंशियली मैं ठीक ठाक हो गया। ऑफिस में गया तो नए दोस्त बने, वहाँ पे काम बहुत था, 10-12 घंटे कॉर्पोरेट में काम करना पड़ता है। तो वहाँ से फिर मैंने बिल्ड बैक करना शुरू किया। फिर एक जॉब स्विच की मैंने बैंगलोर में, मैं 1.5 साल था वहाँ। जब मैंने काम किया तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक अच्छा मेरा करियर है। फिर 8-10 महीने मुझे फील हुआ कि ये भी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लिमिट कर देगी और कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में एक डीपर सेटिस्फैक्शन है। उस वजह से फिर मैं दोबारा मैंने CGL और ये सारे एग्जाम्स लिखे। फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। वो मेरी तीसरी जॉब थी। उसके साथ उस साल कोविड हो गया था 2020 में, तो 3-4 महीने ऑफिसेज बंद थे, मुझे पढ़ने का मौका मिला और प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था। और इनफैक्ट मेरा कॉन्फिडेंस उस पॉइंट पे इतना लो था कि सर नॉर्थ दिल्ली में कहीं पे मेरा सेंटर था, तो सर्वोदय नाम के 2 स्कूल थे, शायद 8:30 अब एग्जाम होता है, उस टाइम 9 बजे होता था और 8:30 सेंटर बंद होते थे। तो मैं 8:20 पे वहाँ पहुँचा गलत सेंटर पे और मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा एक अटेम्प्ट बच जाएगा, कि मैं घर वाले भी अब कुछ नहीं बोल सकते कि गलत सेंटर पहुँच गया, क्या कुछ था।
बट दैट ईयर आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स विद सम 15-20 मार्क्स. तो कॉन्फिडेंस लो था, पिछली बार फेल करके आया था, बट कहीं ना कहीं पे कोविड वाला टाइम ने मुझे हेल्प किया तैयारी में. प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो 3 महीने का टाइम था, उसमें आई वेंट ऑल आउट एंड 320 मेरी रैंक आ गई थी. फिर जो सर ने एक बात मेंशन की, जो फाइनल रिजल्ट से पहले और फाइनल रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में 1-2 हफ्ते का ही टाइम होता है, तो उस पॉइंट पे इतना प्रेशर था कि मैं फिर से प्रीलिम नहीं पढ़ पाया. जिस अटेम्प्ट में मेरा 34th रैंक आया और अभी प्रीलिम की मार्कशीट आई, शायद मेरा 0.33 मार्क्स से प्रीलिम क्लियर हुआ है. तो कहीं ना कहीं पे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं अगर आप एक बेसिक लेवल ऑफ तैयारी रखो. और सबकी लाइफ में वो लो फेज आता है जब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बन रहा होता. तो वो जो मैं लाइफ में पिलर्स की बात कर रहा था, तो अगर आपका एक यूपीएससी का पिलर या फ्रेंडशिप का या रिलेशनशिप का पिलर एक बार के लिए वीक है, तो जो आपका हाउस ऑफ लाइफ है वो बाकी पिलर्स को आप थोड़ा स्ट्रेंथन कर लो. कुछ टाइम अपनी फिटनेस पे काम करो, तो कुछ दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूम लो, कुछ टाइम फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो. तो कहीं ना कहीं पे एक जो फाइनली जो आप एक इंडिविजुअल हैं उसके जो पिलर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे. तो फेलियर सबके साथ होता है, हर तरह से होता है, मेरे साथ भी हुआ. तो बट उस टाइम मैंने गिव अप नहीं किया. कहीं ना कहीं पे मुझे था कि गिव अप कर दूंगा तो कुछ भी नहीं है, और उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया. तो सर ने जो कहा कि फेलियर आता है वो सबके साथ आता है, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे ढूंढनी है, एंड दैट इज़ अ रियल टेस्ट आई फील. और प्रेशर आगे भी आएगा, ये जॉब भी बहुत आसान जॉब नहीं है जितना मेरी समझ है. तो यू हैव टू फाइंड योर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ इन दोज केसेस, एंड that's it. Sir, thanks for giving me this opportunity to share my journey. And sir has been a guiding light हमेशा से. हाँ जी सर. आपने जितनी खूबसूरती से अपनी बात कही है बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं चाहूँगा कि बहुत से आपके डाउट्स सर ने सॉल्व किए. तो एक सभी लोग एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए, क्योंकि सर फ्यूचर के प्लीज सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इसलिए नहीं कि आपने एक यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, इसलिए क्योंकि असली एग्जाम अब आ रहा है. वेरी वेल सेड. इसलिए जो हमारी फैमिली की एक परंपरा रही है, हम लोग बहुत ही डीपली बाउंड रहते हैं. जब हम लबासना पहुंचते हैं तब हम मिलते हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं तब हम मिलते हैं. और वो जो एक्सपीरियंस है, लिटरली कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए आज जो फील्ड में है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, जब वहाँ की लड़ाई देख रहा हूँ ना, तो लिटरली वो यही कह रहे हैं, सर जो कि भी किताबों में पढ़ाया गया, आज ज़िंदगी के आगे सब कुछ बेकार है. मतलब इतना रोज चैलेंज और छोड़ दिया जाता है, जाओ सॉल्यूशन निकाल के लेकर आओ. इसीलिए इसको यूपीएससी कहा जाता है. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है. पर्सनैलिटी पूरी बनानी पड़ती है. तो हम सभी की तरफ से, अभी तो आपने बोला, सभी की तरफ से यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में एक बेहतरीन ऑफिसर जो कंट्री को एक रास्ता दे, दिशा दे, और उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है. तो सभी की तरफ से बेस्ट विशेस, और एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए प्लीज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. And thank you everybody. I'm very humbled by your gesture, and please आप लोग बैठ जाइए. Sir is too kind. Sir, thank you so much.